Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the chapter 1 of SY BCom and the subject is Commerce 4. So let's start. एज यू सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में हमें क्या समझ में आ रहा है? द पिक्चर शोज द हाउ द प्रॉपर प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज बिन हैपनिंग. एज आई सेड, चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो यहाँ पे वी विल स्टडी अबाउट दैट ओनली कि किस तरीके से हम लोग को प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना चाहिए एंड व्हाट आर द इन्वेंट्री थिंग्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज वी रिक्वायर्ड टू मेंटेन और टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Correct. So for making a particular product, first of all, everyone needs a resources. That can be your material, that is raw materials, and the labor we require. We need a manpowers. Then we need a most important capital. We require all such things to make a particular product. Once this all been done, so we are purchasing a raw material, we are converting that raw material into a finished goods, and we are distributing that particular product to areas where we have received a demand. Clear? Itna that all we have already taught you. Other than this, as you see in this picture, जैसे मैंने आपको information ने बताया, as you see in this picture, they all are doing a proper management of a particular product. This person is giving a print or something is doing, he is passing the information to him. He is again the product is been packing on this particular box. Again the machinery comes. Again the packing is doing with the help of that particular machinery. So with the help of a machinery, we are we are doing a proper production management just because we really want to do, and without the production management we don't think so the proper flow of particular product will be happen. So for any of the production things we need a particular production management. It's like a operated things. It is a broader than the production things. Clear? ये मीनिंग है. This is the meaning of production management. Production is a process of transforming raw materials or a purchase components into a finished goods. As I said, production management हमें help करता है raw material से directly finished goods में convert होने के लिए, and जितना हो सके proper inputs को ध्यान में रख के we are converting that. Other than this, production management ये भी हमें refer करता है कि किस what are the functions, what are the work we require to make or to produce a particular product in a factory. So we need a proper planning, we need a proper organizing, we need directing and controlling, we need all such things, a proper transformation of a particular product as required, as desired by from a customer. So we have to make all such things. So if we want to make all such things, we need a proper decision making power. For that for particular decision making power, we require production management. Clear? Is it clear? नेक्स्ट वन, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. किस तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट नॉर्मली किया जाता है एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी देयर. द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ इम्प्रूव क्वालिटी. प्रॉपर तरीके से किस तरीके से हमें प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना चाहिए एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल ऑब्जेक्टिव्स ओनली द प्रॉपर प्रोडक्शन मैनेजमेंट विल बी हैपन. द वेरी फर्स्ट one that is improve a quality. With the help of a production management, we requires a proper quality of a person, sorry, a proper quality of a product. So quality is what? Quality is just like a hallmark which customers always require. It shows the customer satisfaction. So हमें जितना हो सके ना, वी नीड, हमें हेल्प आउट करना चाहिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना चाहिए. आई शुड नॉट टेक दैट रॉ मटेरियल विच इज़ नॉट रिलेवेंट टू माई पर्टिकुलर प्रोडक्ट. हमें रिलेवेंट रॉ मटेरियल्स को नॉर्मल परचेज करके उसको रॉ मटेरियल्स में, सॉरी, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहिए. अदर देन दैट, सेकेंड वन दैट इज़ रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. डेफिनेटली आज नाउअडेज बहुत ज़्यादा हैवी कॉम्पिटिशन होने लगा है. देयरफॉर अगर मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करेंगी, खर्चा कम करने की कोशिश, दैट कॉस्ट रिडक्शन कम करने की कोशिश करती है. लेकिन वो कब होगा, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसिंग अच्छा रखेंगे. इफ़ वी आर कीपिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्राइस टू हाई, डेफिनेटली नो वन विल बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हमें नॉर्मल प्राइजेस पे रख के नॉर्मल पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचना चाहिए. अगर हम लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को
प्रॉपर तरीके से नॉमिनल अमाउंट में रखा, सो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। रीज़न, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा हमारा। वाई? बिकॉज प्रॉपर तरीके से हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ता जाएगा एंड हम लोग कॉस्ट कटिंग भी जितना चाहें आराम से कर सकते हैं। थर्ड वन दैट इज़ गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। एज आई सेड, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो टू मेक अ पर्टिकुलर एडवांटेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, राइट। तो हमें प्रॉपर पहले एनालिसिस करना पड़ेगा किसके साथ में हमारा कॉम्पिटिशन है, एंड अदर देन दैट ओनली हम लोग जितना अच्छा रिसर्च करेंगे हमें जितना अच्छा, हमें हर तरीके से रिसर्च करना चाहिए, फिर इस पर पर्टिकुलर डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें मार्केटिंग रिसर्चिंग करना चाहिए, हमें क्वालिटी कंट्रोल्स को चेकआउट करना चाहिए। रीज़न, अगर हमें प्राइसिंग बढ़ाना है, अगर हमें प्रॉफिट्स बढ़ाना है, अगर हमें कंपटीशन या मार्केट में अच्छा प्लेस डिज़ायर करना है, सो डेफिनेटली वो पोजीशन को हायर करने के लिए, मार्केट में अपना पोजीशन अच्छा रखने के लिए, वी नीड अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड डेफिनेटली वी आर इनटू अ मार्केट एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट। तो हमें कंपटीशन में रहने के लिए वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। The very fourth point, objective of marketing production management, that is ensure regular supply. हमें रेगुलरली सप्लाई करना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर इंटरवल डेज, वेर एवर दे रिक्वायर दैट टाइम ओनली प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको मेक श्योर कर सकते हैं। हम लोग मेक श्योर वहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि हमें रेगुलर इंटरवल से रेगुलर सप्लाई कब होगा, जब हम लोग हेल्प आउट करेंगे पर्टिकुलर गुड्स को ऑन टाइम लोगों को बेचने के लिए। कभी कभी क्या होता है, वेन एवर वी रिक्वायर्ड, जब डिमांड हुआ तब आप सप्लाई करो, मतलब रूटीन बना के उसको शेड्यूल करो। ऐसा नहीं कि जब मन चाहे शेड्यूल करोगे तो प्रॉपर टाइम पे यहाँ पे नहीं होगा, करेक्ट। तो जितना अच्छा रेगुलर सप्लाई होगा, कस्टमर आपसे खुश होंगे बिकॉज आपकी डिमांड को अच्छी तरीके से फुलफिल कर पा रहे, करेक्ट। तो दिस आर द टू इंश्योर अ गुड रेगुलर सप्लाई। नेक्स्ट वन दैट इज़ मोटिवेट एम्प्लॉयज़। हमें नॉर्मल अच्छी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोटिवेट एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट जब आप करते हो तो नॉट ओनली इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हमें हर डिपार्टमेंट के लोगों को नॉर्मल मोटिवेट करना ज़रूरी है। द मोटिवेशन कैन बी ऑन टू टाइप्स, दैट इज़ monetary and non-monetary. Monetary in terms of a money, cash money you can say. Non-monetary not in terms of a cash but in a term of a kind, that can be awards, certificates, some of the uh, things, the facilities we are giving to them. These all are the non-monetary things. तो हमें we should make ensure that कि whenever जब भी मुझे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, सो आई एम चूजिंग बोथ द थिंग्स, दैट इज़ मोटिवेशन एंड नॉन मोटिवेशन, बोथ द थिंग्स आई एम डूइंग दैट, ताकि हमारे कस्टमर खुश होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ खुश होंगे एंड हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वो काम को नॉर्मली यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ एंड द लास्ट वन दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओनली। हम लोग अच्छे प्रोडक्ट को या हमारे प्रोडक्ट की लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। इफ़ अ पर्टिकुलर और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज़ नॉट एट ऑल गुड, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारा न्यू प्रोडक्ट भी इतना ज़्यादा बेस्ट होगा। वी कैन मेक अ ट्राई, बट रिसर्च कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ डाउटफुल। सो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो अभी करंटली प्रोडक्ट है, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से उसमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा रहेगा। द एग्जाम्पल्स दैट इज़ एग्जिस्टिंग कस्टमर, अभी हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ मैगी। सो मैगी में विद द वेरी फर्स्ट ऑन मैगी में, और पहले टाइम पे ओनली वन फ्लेवर यूज टू कम। ना अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ गए हैं मैगी के मसालों में। सो जिसकी जैसी चॉइस है वैसा आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। जब जिस नए नए फ्लेवर्स है मार्केट में इसके मसाले आने लगे तो कस्टमर्स ने उसको वेलकम किया। रीज़न, क्योंकि उसका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो पहले से चलता आ रहा है प्रोडक्ट, इट्स नॉट टोटली बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला प्रोडक्ट है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, एवरीवन लाइक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो एग्जिस्टिंग अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस आर द टोटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिस तरीके से हमें करना चाहिए, एंड इसी के ज़रिए हम लोग हर तरीके से प्रोडक्शन को मैनेजमेंट करते आ रहे हैं।
क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. थोड़ा सा हम आगे आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, दैट इज स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप ये क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, इसकी नीड क्यों है, हमें क्यों लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर होता है. सो दिस आर द थिंग्स विच रिक्वायर्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट और अ प्रॉपर फंक्शंस. The very first one, that is production selection and design. Every firm needs to select a right product or a design in order to meet the customer. Correct. कस्टमर को मीट करने के लिए हर किसी को प्रॉपर डिज़ाइनिंग एंड राइट प्रोडक्ट को नॉर्मली परचेज करके या फिर राइट प्रोडक्ट बनाना ज़रूरी हो जाता है. तो द प्रोडक्ट मस्ट बी न सिलेक्टेड आफ्टर डिटेल इवैल्यूएशंस. इन शॉर्ट, जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो ना, तो पहले आप उसको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी, उसमें डिटेल इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी. इवैल्यूएशन इट मीन्स यू के रीचेकिंग करो, आप लोग ऑडिटिंग करो, प्रॉपर डेवलपमेंट करने की कोशिश करो, इवैल्यूएट करो. जिससे क्या होगा, हमारा जो करंट प्रोडक्ट है, जो हमारे अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए. अदर दैन दिस, हम लोग को अगर मैं प्रॉपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ तो मुझे प्रॉपर सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है. द सिलेक्शन कैन बी एनी ऑफ द थिंग्स, राइट. सपोज अगर मैं मार्केट में आ रही हूँ, मैं मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट ला रही हूँ, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, पहले मुझे वो रिसर्च करना चाहिए. फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या प्राइस पे दूँ, क्या क्वालिटी पे दूँ, क्या क्वांटिटी पे दूँ. आई हैव टू थिंक, आई हैव टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आई हैव टू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो मुझे तभी मैं प्रॉपर प्रोडक्शन सिलेक्शन एंड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइनिंग नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं. उससे क्या होगा, हमारा वैल्यू ऑफ कस्टमर भी ज़्यादा बढ़ सकता है. सेकेंड वन, दैट इज़ प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग. A business firm, any of a business firms need to select a proper planning, with the help of a right process. Without the help of a particular process, without the help of a right process, it makes sure कि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है. अगर प्रोडक्ट का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली द प्राइजेज और द डिमांड विल बी फॉल ऑफ. तो प्राइजेस को हमें हाई करना है, हमें डिमांड को हाई करना है. वी नीड टू स्टक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस ओनली. हम लोग जितना अच्छे तरीके से प्रोसेस को वर्कआउट करेंगे, उतना अच्छा प्रॉपर मेरा सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग होता रहेगा. करेक्ट. तो हमें अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, वी नीड अ मशीनरीज, वी नीड अ मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स. हमें बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए, तब जाके मेरा वही प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेरा काम होगा एंड प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो पाएगी. करेक्ट. So these are the 2 pointers. Next one, that is capacity planning. मेरी पर्टिकुलर सपोज मेरी कितनी कैपेसिटी, इन शॉर्ट आप ऐसे समझ जाओ. तो सेम मशीनरी की कोई कंपनी की नॉर्मली यहाँ पे क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है. लेकिन वो कैपेसिटी कब फुलफ़िल होगी, जब जिस तरीके से मैं प्रोडक्ट को बनाऊँगी, या मेरे राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत ज़रूरी है. इफ़ माई मशीनरी टेक अ कैपेसिटी ऑफ 1000 प्रोडक्ट और 10,000 प्रोडक्ट, आई कैन नॉट मेक अ 1 लाख प्रोडक्ट एट अ टाइम. रीज़न, क्योंकि मेरी मशीनरी की कैपेसिटी, मेरे पास रॉ मटेरियल ओनली आई हैव अ 10,000. फॉर अ 10,000 फिनिश गुड्स आई हैव ओनली लिमिटेड रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल हमारा एग्जिस्टिंग नहीं होगा, रॉ मटेरियल हमारा एक्सटेंड नहीं होगा. क्लियर है. सो फॉर दैट हमें प्रॉपर तरीके से कैपेसिटी प्लानिंग करना चाहिए. जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे रिक्वायरमेंट लेना चाहिए, और जितना प्रोडक्ट पहले डिमांड हुआ है उसका प्रॉपर तरीके से आप डिलीवरी करो. उसके बाद में हमें ये भी मेक श्योर करना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में अभी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है. एग्जाम्पल्स में एवरी डे आई कैन नॉट मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हमेशा वंस इन अ वाइल आती है. जैसे सपोज एग्जाम्पल अम्ब्रेलाज मोस्टली यूज इन अ विंटर सीजन एंड इन अ समर सीजन्स. तो आप लोग जब हम विंटर सीजन है, आई एम सॉरी, इन अ रेनी सीजन एंड अ समर सीजन, तो विंटर के टाइम पे उसकी प्रोडक्शन हमें कम करनी चाहिए. रीज़न, क्योंकि उसकी अभी डिमांड नहीं है. पर्टिकुलर छोटे छात्रों की या बड़े छात्रों की अभी डिमांड नहीं है. वी हैव अ वेराइटी ऑफ अम्ब्रेलाज, बट उस अम्ब्रेलाज की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उस कोई भी फेस्टिवल्स हो, कोई भी सीजन्स हो, कोई भी इवेंट्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहिए. तो उसकी मेरी कैपेसिटी जितनी हमें दिखाई देती है. द नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन को प्लानिंग करो. तो पहले प्लानिंग कैसे होगा, राउटिंग. देखो, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, वी नीड टू स्टार्ट टू अ मोस्टली 2 टॉपिक्स, दैट इज़ राउटिंग एंड स्केड्यूलिंग. राउटिंग का मतलब होता है कि मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, सो व्हाट आर द टाइम टेबल आई यूज़ टू फॉलो. मैं प्रॉपर एक टाइम टेबल जैसे नॉर्मली क्या करूँगी, उसको फॉलो करूँगी.
मैं टाइम टेबल बना नहीं रही हूँ, मुझे ध्यान देना है कि वो टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए व्हाट आर द रिसोर्सेज वी रिक्वायर्ड। करेक्ट। तो जो एक्टिविटीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं ना, उसको हम लोग नॉर्मली राउटिंग बोलते हैं, ताकि मेरा स्मूथ तरीके से फंक्शन हो पाए। एंड स्केड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल बनाना। मैं टाइम टेबल बना रही हूँ ताकि मेरा प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन रॉ मटेरियल से लेके पर्टिकुलर कस्टमर तक पहुँच जाए, तो मुझे प्रॉपर तरीके से उसको स्केड्यूलिंग करना चाहिए। तो राउटिंग एंड स्केड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो प्रोडक्शन प्लानिंग में, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन थिंक एंड नॉर्मली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल। आई हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से मेरा प्रोडक्शन कंट्रोल हो। प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू मॉनिटर द प्रोडक्शन टू फाइंड आउट व्हाट टू फाइंड आउट, ताकि प्रोडक्शन इज़ बिन टेकिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेसेस। हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए, टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे मेक श्योर करना है मेरा प्रोडक्शन कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए। आई हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर मैं स्टेप्स को फॉलो करूँ, प्रॉपर तरीके से नेसेसरी टाइम में नेसेसरी इक्विपमेंट्स को लेकर नॉर्मली फॉलो करूँ। अगर प्रॉपर तरीके से कंट्रोलिंग नहीं कर सकती, प्रोडक्शन को प्रॉपर नहीं बना सकती, मुझे यहाँ पे मेक श्योर करना है कि मेरे जो भी मैनेजर्स हैं वो फाइंड आउट कर सके किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए, एंड टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे किस तरीके से नॉर्मली वर्कआउट करना चाहिए। नेक्स्ट में आता है दैट इज़ मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ अ मशीनरीज। आई हैव टू मेक श्योर अगर मेरे कोई प्रोडक्ट, अगर कोई मेरी मशीनरी दैट इज़ नॉट एट ऑल इन यूज़, अब वो ख़राब हो गई, तो आई हैव टू रिप्लेस दैम एंड टेक अ न्यू मशीनरी, और एल्स एग्जिस्टिंग मशीनरी इफ़ इट्स नॉट प्रॉपर, तो आई हैव टू मेक अ प्रॉपर तरीके से मेंटेन करूँ आपको, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ अ मशीनरी ओनली हम लोग प्रॉपर प्रोडक्शन कर सकते हैं। टू मेक अ प्रॉपर प्रोडक्शन हमें मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज अ न्यू टेक्नोलॉजीज़। ऐसे नहीं कि आपकी मशीनरी बहुत पुरानी है और आप अभी भी उसमें काम कर रहे हो, और मार्केट में या मार्केट की ट्रेंड में आजकल न्यू मशीनरी आ गई, न्यू चीज़ें आने लगी है, दैट इज़ नो यूज़। तो हम लोग को टेक्नोलॉजीज़ के साथ में, मार्केट्स के साथ में अपने आप में कोई ना कोई चेंजेस करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। एंड हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं वेन एवर आई एम यूजिंग अ मशीनरी। प्रॉपर ग्लव्स, सपोज लेबर्स को बोलते हैं हेलमेट पहनो, अगर ऐसे कुछ हो गया ग्लव्स पहनो, या प्रॉपर हैंड को सिक्योर करके रखो, बॉडी पार्ट को सिक्योर करके रखो, ताकि मशीनरी में हाथ ना चले जाए, ऐसा कुछ हम काम करें तो कुछ बहुत बड़े एक्सीडेंट्स ना हो जाए। तो आई हैव टू मेक अ प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑल्सो वाइल यूजिंग द पर्टिकुलर मशीनरी। वेन एवर इट्स नॉट रिक्वायर स्विच ऑफ कर दो, या फिर कुछ भी चेंजेस करना है तो हमारे पास में वी मेक श्योर कि हमारे पास में सफिशिएंट लेबर हो वो काम को कंप्लीट करने के लिए, नॉट ओनली अ बर्डन ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मुझे स्टडी करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। एंड द लास्ट में दैट इज़ अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर मेक श्योर करूँ, ट्रेनिंग दूँ उनको मैं, एंड उनको बताऊँ किस तरीके से मशीनरी को यूज़ किया जाता है, मैं उनको अच्छे तरीके से रिसर्च करूँ, मैं इनको सिखाऊँ किस तरीके से पैकेजिंग होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से मेरा सेफली यहाँ पे काम हो सके। क्लियर? So these are the total, I would say that 2, 4, 5, 6, 7. These are the 7 pointers and the 7 scope of production management which I have taught you. Even I have taught you about the 7 objective of production management. So आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं, more than enough, and अच्छा खासा आपका हो जाएगा. Thank you.